Hello, my dear friends. This is the combination of day 22, 23, and 24. I know I'm a little late, but still, it's doesn't matter. Let's begin with today's lesson. Before that, I am requesting all please on the caption so you feel the better performance of this video. So, let's start. Today's topic it's little about all the important thoughts and our behavior. So let's begin with it. Feeling behind doesn't mean you are behind. It usually means you're comparing your middle to someone else's highlight. Some days, some slowly, or move slowly for a reason. They are teaching you patience, not tasting your worth. Not everything you do will be noticed, but everything you do quietly still shapes who you are becoming. Overthinking feels productive, but actions is what brings peace. One small move is better than 1,000 thoughts. You don't need a clear path, you need a direction and the courage to keep walking. Being tired doesn't always mean you've worked hard. Sometimes it means you've been thinking too much. The moment you stop comparing, your journey starts making sense. Consistency, it's loud. It shows up daily without asking for motivation. The right time rarely announces itself. It quietly waits for you to begin anyway. Confidence grows after action, not before it. Just because you can't see progress doesn't mean it isn't happening. Self-doubt usually appears when you are doing something meaningful. Resting is not quieting, it's how you make your. You don't disappear along the way. Feeling lost doesn't mean you're failed. It means you've reached a point where old answers no longer work. Talk to yourself the way you talk to someone you love. Small wins count. They are proof that you're still moving. Emotions growth is learning when to react and when to let go. You don't have to perform every day. You just have to show up. Discipline isn't about force, it's about keeping process up promises when motivation disappears. Fear doesn't mean stop. It usually means this matters. Loneliness sometimes show up when you are growing in a new direction. Life doesn't run on deadlines. You are not late, you are learning. The process feels slow because it's building something strong and real. Strength is continuing
even when no one knows how hard it is. You work, always feel motivated. That's why habits matter. Some days aren't productive or qualitative, they are protective. Choosing yourself doesn't mean hurting others, it means respecting your limits. Peace comes when you stop forcing life to move faster than it should. Growth doesn't look clean, it looks confusing before it looks clear. Consistency is boring, I know, and that's why it's work. You're not stuck, you're learning something you can't skip. Protect your energy, it decide how far you can go. Your best today might look different than yesterday. That's okay. The way you talk to yourself shapes your future more than you realize. You don't need to become more to be enough. Patience isn't waiting, it's confusing or continuing without panic. The strongest growth often when it happens quietly. Sometimes life breaks you. You just enough to rebuild your property. Clarity comes after efforts, not before. Most peace live in the present, not in the future you are chasing. If you are still trying, you haven't failed. Be patient with yourself. You're learning things no one taught you. Things that last are built slowly. Momentum doesn't need perfection, it needs consistency. If today felt heavy, don't stop. I said, don't stop. You are still moving. And maybe that's how we are growing silently. And it's more or less enough for today. I know you all are excited for my love life story, and we continue. Before it, one thing that I need to clear, मेरे मोबाइल में अभी चार्ज बहुत कम है, सो मैं ज़्यादा स्टोरी कवर नहीं कर पाऊँगा. ओके, सो just before I start my video, I just watch my last video when I actually ended. It's actually a backpack. Yeah, I did that. I remember. So let's begin with it. A backpack. So जब हम बस में बैठे थे एंड कोइंसिडेंटली वो मेरे लेफ्ट साइड में बैठी थी. मतलब मैंने देखा नहीं था. Just I seen her backpack and then I realized it's definitely who I know. So कुछ देर बाद जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, वो विंटर का टाइम था,
बिकॉज आफ्टर कॉलेज 6 मंथ बाद विंटर स्टार्ट हो जाता है। सो वो विंटर का वक्त था एंड ठंडी हवा बहुत ज़्यादा अंदर आ रही, तो मैंने विंडो मतलब थोड़ी सी पुश की आगे की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ देखा एंड रियली कि अभी कंफर्म हो गया था कि वे वही है, बिकॉज मैंने फेस देख लिया था कि ये 100% वही है। एंड द रीज़न बिहाइंड, बिकॉज बहुत से लोग कमेंट करके बता रहे थे मुझे कि कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, वो क्यों बैठ सकते हैं, आप तो कॉलेज फ्रेंड्स भी नहीं हो ना ही वो, इट्स जस्ट अ रैंडम पर्सन फॉर हर लाइक यू, सो फॉर व्हाट। सो द रीज़न इज़ कि मैं एक टाउन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बस मतलब मॉर्निंग टाइम में जो एक ही बस आती है और उस एक ही बस से हम ट्रैवल करते हैं, और वो हमारा जो टाउन है वो लास्ट स्टॉप है, और यहाँ से वो पैसेंजर को पिकअप करते करते लास्ट स्टॉप जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी वहाँ पर जाते हैं। सो बिटवीन इट्स ऑल जर्नी देर आर मिनिमम 8 to 9 stops, 8 to 9 minimum, I said minimum, okay। सो तो बस पूरी फुल हो जाती है, पूरी फुल, जगह ही नहीं होती कि पैसेंजर को रुकना पड़ता है कि कहीं और किसी और ट्रैवलिंग फैसिलिटीज से वक्त आ सके वापस, बट बस में उतनी जगह नहीं होती। सो और मैं मतलब ऐसा बनता था कि मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों, इंट्रोवर्ट था। सो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, लड़कों से तो नहीं करता था बेसिकली, लड़कियों से तो मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, दूर दूर तक दिखा नहीं था किसी के पास तक, एक्सेप्ट माय सिस्टर्स मॉम। मतलब मैं रिलेटिव को भी मैं नहीं जानता आज तक, ना ही मामा को जानता हूँ, ना उसके भांजे को जानता हूँ, मतलब उसके नहीं ऐसे, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि रिलेटिव्स को किस नाम से पुकारे, इतना इंट्रोवर्ट हूँ मैं। और कोई मुझसे रिलेट कर सकता है तो कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ एंड स्टिल मैं अभी भी उसी कैटेगरी में हूँ। सो आफ्टर व्हाट बोथ आर एम्बैरसिंग, फील एम्बैरेस्ड, बिकॉज मैंने उसकी तरफ देखा था तो जाहिर सी बात है वो भी मेरी तरफ देख रही हो, एंड मे बी होपफुली आई जस्ट इमेजिन कि उसे पता चल गया होगा कि नहीं होगा कि मैं वही हूँ जो 1 साल पहले मतलब 10th में मिले नहीं थे, जस्ट दिखे थे, आई कॉन्टेक्ट हुआ था यार, अब मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ तब, आई डोंट थिंक सो कि उसे याद भी होगा। एंड वो जर्नी भले ही 1 घंटे की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन उसके साथ ट्रैवल किया, पूरा दिन, मतलब हर 1 मिनट ऐसे गुजर रहा था कि जैसे 1 घंटा बीत रहा हो। हर मूवमेंट्स, हर एक्सप्रेशंस, क्योंकि हम साथ ही में बैठे तो ना हिल सकते हैं ना कुछ और। Are you guys just imagine what kind of scenario it was? It's really shame. And unless and until हम लोग पहुँच तो गए कॉलेज में, पहुँच नहीं मतलब बस स्टॉप में पहुँच गए जब हमारा लास्ट स्टॉप था सिटी में, एंड डी बोर्ड हम नीचे उतर गए। दैन बहुत मतलब
वो हमेशा मेरे आगे चलती थी। उस दिन के बाद वो मुझे हर दिन मतलब एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ डेज, हर दिन वो मुझे बस में दिखती थी। बस में थी मतलब हम दोनों साथ में ट्रैवल करते थे, बट नॉट ऑन द सेम सीट, ओके। ऑल्सो शी हैड अ फ्रेंड्स एंड ऑल्सो मी, बट मेरे साथ कोई बैठता नहीं था एक्सेप्ट एनी रैंडम पर्सन who don't know who's me actually and what kind of my personality. So ऐसे रैंडम बंदा जो भी होता था, बंदी तो नहीं बैठती थी मोस्ट ऑफ केसेस, बट वो कैसे बैठ गई मुझे नहीं पता। बट ऐसे ही हर दिन चलता था। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करने वाला हूँ स्टोरी को, कुछ छोटा सा क्लाइमैक्स बता देता हूँ कि जब भी हम कॉलेज पहुँचने का टाइम होता था तो वो मेरे आगे चलती थी एंड देन मैं उसके पीछे हमेशा से एवरी डे, इवन संडे। जैसे कि हम क्लासेस में आते थे, इफ़ नॉट कॉलेज देन क्लासेस तो जाना ही पड़ता था ना, तो क्लासेस में भी यही काइंड ऑफ सिनेरियो देखने मिलता था। एंड स्टिल वी डोंट नो, मे बी यस वी डोंट नो विच अदर्स नेम्स, ओके। विच अदर्स नेम्स भी हमको याद नहीं थे। एंड मुझे उसका नाम कब पता चला था पता है? क्लास में पता चला था, लेकिन उससे पहले पता नहीं चला था। क्लास में कैसे पता चला था वो बहुत आगे की स्टोरी है और मैं तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी तक मुझे उसका नाम याद नहीं है, मतलब याद ही क्या बोल रहा हूँ, पता ही नहीं है। एंड व्हाट, हम कॉलेज पहुंच जाते हैं। मेरे बारे में आपको एक वियर्ड बात बताता हूँ कि मैं कभी भी टिफ़िन लेकर नहीं जाता हूँ। टिफ़िन लेकर कभी भी नहीं जाता हूँ। मेरा मतलब अलग माइंडसेट है कि मैं सुबह मैं आपको उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मतलब कॉलेज में मैं ही जाता था, मेरा छोटा भाई जो स्कूल में जाता है। बट फ़िलहाल वो भी अभी कॉलेज में जा रहा है, लेकिन तभी की बात है जब वो स्कूल में जाता था, तब स्कूल के लिए थोड़ा देर हो जाती थी और मैं कॉलेज में 4 बजे उठ के जाता था। 4 बजे उठता था। 6 बजे यहाँ पर एक 4x4 की जो पिकअप थी, मतलब हमारा 4 व्हीलर का एक, यहाँ पर हमारे टाउन में एक अंकल है जो जाते थे सुबह। तो मैं उनके साथ जाने के लिए 4 बजे उठता था। देन आई बिकम रेडी होता था, पूरा प्रिपेयर होता था एग्ज़ाम के लिए भी होता था। तो एग्ज़ाम मतलब घर कहीं जाना होता था एग्ज़ाम के टाइम पर, तो मैं 2:30 बजे ऐसे मॉर्निंग में ही उठ जाता था। पता नहीं कैसे वो आदत थी मेरी 12th में और 11th में इतना सीरियस नहीं था, लेकिन 4 बजे उठ जाता था। एंड व्हाट गाइस कि मैं हर दिन 4 बजे उठकर रेडी होकर गाड़ी में जाकर कॉलेज पहुंच जाता था ऑन टाइम। मतलब और ये सब किस लिए पता है? क्योंकि गेस करो कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी उसी टाइम पे कॉलेज में आती थी। फॉर व्हाट आई डोंट नो। किसी दिन क्या होता था पता है, मैं एब्सेंट था तो उसे लगता था, एब्सेंट नहीं था, किसी दिन अगर मुझे या वो जो हमारी जीप थी वो नहीं मिली, देन व्हाट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बस के अलावा। सो मैं बस से जाता था और देन इफ़ आई एम लेट, देन अगले दिन क्या होता था कि वो बस से आती थी और देन मैं जीप से जाता था, पता नहीं, और वो लेट हो जाती थी अगले दिन। मतलब ये वाला सिनेरियो था।
मतलब पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था, मतलब थोड़ी देर के लिए लगता था, कुछ दिन। मतलब वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मे भी उसको भी लगता होगा कि किसी दिन मैं लेट आ रहा हूँ, मतलब मैं बस से आ रहा हूँ, किसी दिन वो जीप से आ रही है, दूसरे दिन वैसा वैसा हो रहा है। मतलब ये ऐसी सिचुएशन चेंज होती थी। आई डोंट नो व्हाट इफ we both are trying to travel each others at the same traveling facilities, but वही सब सिनेरियो हो जाता था। बट मैनेज हो गया किसी ना किसी दिन। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर क्लासेस में जाना हो तो जीप से ही जाना पड़ जाता, तो उस वक्त हम जीप में ही मिलते थे, तो वो वाला। और अगले दिन डिपेंड करता है कि हम दोनों राइट, मतलब एक ही ट्रैवलिंग एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग। मतलब अगर वो बस से जाती है या फिर मैं जीप से जाता हूँ, तो दोनों ने एक चूज़ किया, देन तब से हम सेम ही आ रहे हैं। मतलब एक्सेप्ट सम सिनेरियोज ऑफ एनी हैपेंस। तो वो वाला भी एक मुझे याद है। एंड जब ब्रेक्स की बात होती है, लंच ब्रेक्स की बात है, तब मैं तो टिफ़िन नहीं लाता था। जैसे कि मैं रीज़न बताया कि मैं इतने सुबह सुबह उठता था, तो मैं माँ को नहीं उठाता था, मैं ही उठ जाता था। मैं खुद से रेडी पानी वानी गर्म कर जो भी है मैं ही करता था सब। जो प्रेस वगैरह करना हो, कपड़ों को प्रेस करता था खुद से। और क्यों प्रेस करता था तो याद ही होगा तुम लोगों को, मैं क्यों प्रेस करता रहूँगा। डेली प्रेस करता था और जस्ट ओनली फॉर हर। ब्रेक्स की बात चल रही थी ना, और जब ब्रेक्स की बात होती थी तो आई नो दे ऑल आर एंजॉयिंग देयर टिफ़िन, तो मैं एक 10 से 15 मिनट थोड़ा बाहर जाता था, थोड़ा घूम के आता था अकेले, क्योंकि मुझे पता है सब लोगों ने टिफ़िन लाया नहीं होगा, फिर भी बाहर से खाएंगे। और मैं ऐसा बंदा था जो भाई ऑयली फूड ऐसे अवॉइड करता था कि जैसे किसी लड़की को अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब लड़कियों को मैं ऐसे ही अवॉइड करता था। लड़कियाँ मतलब मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक्सेप्ट दैट वन लिटिल गर्ल। मतलब अगर किसी भीड़ में भी मैं उसको देखूँ ना, तो स्कैन करके तुरंत पहचान जाता हूँ कि हाँ वो वही। बाकी मंदियाँ दिखती नहीं है, कोई लड़की दिखती ही नहीं थी जब मैं भीड़ की तरफ देखता हूँ। कभी हम जब ग्राउंड में निकालते हैं, तब मैं बस लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड से मुड़ भी जाऊँ ना, तो जस्ट विद इन अ सेकेंड मैं उसे ढूंढ लेता हूँ कि वो कहाँ पर है, विद इन अ सेकेंड। बाकी सारे लोग ब्लर हो जाते हैं, पूरे ब्लर। सिर्फ वही एकदम फुल HD के साथ क्लैरिटी के साथ दिख जाती है, पता नहीं कैसे। एंड हर एक मोमेंट मुझे याद है यार, कैसे बताऊँ, सारा इलेबोरेट तो नहीं कर सकता ना। एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत गए जब, और कॉलेज की बात करूँ तो मैं राइट साइड में दीवार के पास बैठता था, लेफ़्ट साइड की जो रॉ थी उसी रॉ में वही बैठती थी, एकदम लेफ़्ट साइड में मेरे, एकदम सेम लाइन में। And still I don't know her name, okay? And ऐसे ही 2-3 मंथ्स बीत गए। दैन उसके फ्रेंड्स भी थे ना, जो गेस कर लेते थे कि भाई तुम दोनों का वो चल रहा है क्या। स्टिल यहाँ पर मैं मेरे दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं उसके फ्रेंड्स की, उसकी सहेली जो भी होगी उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, हाँ एक्सेप्ट मेरा बेंच पार्टनर एंड सम क्लासमेट्स जब हम साथ में बैठे थे। बट या never force me, I never talk much as much they talk with their other friends. It's like a best friends and whatever they want, whatever they talk.
बट मुझे ऐसा लगता था, मतलब एक दिन ऐसा क्या हुआ था कि मैं बैठा था एंड वो भी बैठी थी क्लास में। बाकी बच्चे थे लेकिन अदर रॉ में थे, इस 2 रॉ में हम दोनों थे। देन वॉट, उसकी एक फ्रेंड आती है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, उसके सहेली आती है, तब की बात करता हूँ। हाँ, जिस वन, तो उसकी सहेली मतलब उसकी जो फ्रेंड है, उसकी जो बेंच पार्टनर होगी या फिर आगे जो बैठते हैं और पीछे जो बैठते हैं, मैं उनको जानता हूँ, ठीक है, बस जानता हूँ ना, उनको देखा है ना पहचानूंगा, ना नाम पता है, बस जानता हूँ। एंड वॉट, वो आई, 1-2 मिनट बैठी एंड उससे कुछ बात नहीं करी थी, वो भी मोबाइल में देख रही थी जिसकी मैं बात करूँ, एंड मैं भी मोबाइल में था, मतलब जस्ट एक्शन कर रहा था या फिर कुछ थॉट्स कुछ रिव्यू कर रहा होगा, और वो भी वैसे ही करती थी, मतलब दोनों इंट्रोवर्ट ही थे जैसा मैंने कहा था, वो सेम क्लास में ही बैठते थे हम दोनों। एंड वो आई, 1-2 मिनट जस्ट नोटिस किया, पूरा सिचुएशन देखा एंड उसने उससे कुछ कहा। देन उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा एंड से कुछ तो था, देन स्टार्ट लाफिंग फॉर व्हाट आई डोंट नो, एंड शी फील एम्बैरेस्ड लाइक शेम, वो मतलब शर्म आ रही थी उसको, पता नहीं क्यों। आफ्टर दैट बेल बज गई और सारे फ्रेंड जो है क्लासमेट्स वो अंदर आ गए, और मुझे वो सिनेरियो अभी याद है, या तो उसके दोस्त ने हम दोनों के बारे में पूछा होगा कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है, क्योंकि वो वही पूछती थी, मुझे जितना याद है। उसने फिर से पूछा, देन वो पता नहीं कि क्या हुआ, तो फील एम्बैरेस्ड और एनी अदर रीजन, आई डोंट नो। देन मैंने भी बेंच पे ही सो गया, मतलब वो लेटने की एक्शन करता था, हम दोनों ऐसे ही थे यार, तो सो जाते थे सब, दोनों के हैंड्स मूव एंड मूवमेंट सेम। Whether I try to copy her, maybe she try, एंड ऐसे ही होता था। एंड मे बी इट्स इनफ फॉर टुडे, आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।